نہیں پڑتا کہ کوئی آئے یا نہ آئے، کیونکہ جسے آنا ہے وہ سیدہ آ چکی ہے، جسے آنا ہے وہ میرا مولا سجاد آ چکا ہے، بی بی سکینہ آ چکی ہے۔ اس لیے مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آئے یا نہ آئے، اور فرش عزا پہ وہی نہیں آتا جس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، قبرستان میں وہی نہیں جاتا جس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے ضمیر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم عزادار ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، سینے پہ ہاتھ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم عزادار ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم عزادار ہیں۔ انصاف سے بتائیے آپ عزادار ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے آپ عزادار ہیں؟ عزادار کو کیسا ہونا چاہیے؟ عزادار کو مجلس میں نہیں آنا چاہیے، عزادار کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے۔ عزادار وہ ہے جو مجلس فرش عزا بچھے تو فوراً فرش عزا پہ آ جائے۔ اس لیے یہاں پہ بی بی سیدہ انتظار کرتی ہے، یہاں پہ میرا مولا سجاد انتظار کرتا ہے، ہم ان کو انتظار کراتے ہیں۔ بتائیے عزیزان محترم، اس حسین کا لاکھ لاکھ کرم ہے جس نے ہمیں دنیا سے نکال کر فرش عزا کی صورت میں جنت میں لے جا کے بٹھا دیا، جنت میں بٹھا دیا۔ عزیزو اس حسین کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، چار مصرے سے میں اپنی مجلس کا آغاز کرتا ہوں کہ فرشتے رحمتیں لے کر کے اس کے گھر نہیں آئے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں کہ فرشتے رحمتیں لے کر کے اس کے گھر نہیں آئے، کہ جن کی آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں آئے، اور نہیں لکھا تھا جن کی تقدیروں میں خلد میں جانا، نہیں لکھا تھا جن کی تقدیروں میں خلد میں جانا، عزا خانوں سے وہ گزرے مگر اندر نہیں آئے۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اپنے کردار کو بنائے رکھنا چاہیے کہ لوگ کہیں ہاں یہ علی کا چاہنے والا ہے، ہاں یہ امام کا چاہنے والا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے ہم سے؟ اسلام کہتا اپنے اخلاق کو بنائے رکھو، تہذیب سے رہو۔ اسلام ہمیں دکھاتا کسی کے دل میں کھٹکتا ہوا کانٹا نہ چھوڑ دو، کسی کو ایسی بات نہ بول دو کہ جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے، کسی سے ایسا کچھ نہ بولو کہ سامنے والے کو اذیت پہنچے، سامنے والے کو تمہاری بات سے تکلیف ہو۔ کوئی بھی ایسی بات نہ بولو کہ سامنے والے کو اذیت پہنچے۔ تو اسلام چاہتا ہے کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو اپنی وجہ سے۔ میں بھی یہی سبق پڑھ رہا تھا، آپ بھی یہی سبق پڑھ رہے تھے، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ لیکن خدا بند عالم آگے بڑھ کے کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ مجھے اسلام پسند ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، مثال ہے جیسے کہ میں اپنے وطن سے چلا یہاں آیا مجلس پڑھنے کے لیے، اور کمرے میں بیٹھا تو کوئی میرے لیے چائے لے کر آیا، کوئی کافی لے کر آیا، کوئی کولڈ ڈرنک لے کر آیا، مثال دے رہا ہوں۔ تو میں نے یہ کہہ کے چائے کی کپ کو اٹھا لیا کہ مجھے تو بس چائے پسند ہے، چائے کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پسند۔ اب جو کافی لے کر آیا، جو کولڈ ڈرنک لے کر آیا، آپ بتائیے اس کا دل ٹوٹا بھی نہیں ٹوٹا؟ اس کا دل ٹوٹا۔ اب بھلے ہی وہ اس وقت میرے احترام میں کچھ نہ بولے، لیکن اتنا ضرور کہے گا بہت بڑے مولانا بنتے ہیں، بہت بڑے مولوی بنتے ہیں، بہت بڑے ذاکر بنتے ہیں، تہذیب والے بنتے ہیں، لیکن انہیں انداز گفتگو نہیں پتا ہے، اپنی پسند کا کہاں اظہار کیا جائے انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے۔ تو بھائی میں نے ایسا غلط کیا بول دیا؟ میں نے یہی تو کہا ہے کہ مجھے چائے پسند ہے، آزاد ہندوستان ہے، سب کو اپنی پسند کا اظہار کرنے کا حق ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب ہم جس مذہب کے پروردہ ہیں اس میں اس طرح کی پسند ناقابل قبول ہے، اس طرح کی پسند ناقابل قبول ہے۔ آپ نے تو کہہ دیا کہ مجھے چائے پسند ہے، اب جو کولڈ ڈرنک لے کر آیا اس کا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟
جو कॉफी लेकर आया उसका दिल टूटा कि नहीं टूटा। तो मतलब ये पता चलता है कि बशरियत का तकाजा ये है कि ऐसी बात का इजहार ना करो, ऐसी पसंद का इजहार ना करो जिससे सामने वाले का दिल टूट जाए। बशरियत का तकाजा यही है कि ऐसी पसंद का इजहार न किया जाए कि जिससे सामने वाले का दिल टूट जाए। अब जब मैं मक्के का माहौल देखता हूँ तो जगह जगह पे तहजीब, जगह जगह पे नजरिए, जगह जगह पे मजहब, जगह जगह पे फिक्र। अरे भाई, जो पत्थरों को खुदा मानता है वो उसके आगे सर झुका रहा है, जो दरख्तों को खुदा मानता है वो उसके आगे सर झुका रहा है, जो चांद को पूजता है वो उसके आगे सर झुका रहा है, जो सूरज को पूजता है वो उसके आगे सर झुका रहा है, जो सितारों को खुदा मानता है वो उसके आगे सर झुका रहा है। तो इतने अदियान की भीड़ में खुदा वंदे आलम कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि मुझे दीन पसंद है, मुझे इस्लाम पसंद। मैं कहूँगा है खुदा तुझे अगर इस्लाम पसंद ही है तो अपने दिल में रखता बात, जाहिर करने की क्या जरूरत है कि मुझे इस्लाम पसंद है। लोगों के दिल टूट जाएंगे, लोगों के दिल पारा पारा हो जाएंगे तो अजब नहीं। खुदा का मैं यही तो कानून देना चाहता हूँ, हक के इजहार में कभी बातिल के आज़ार का ख्याल न करना। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा यही कहता है, हक के इजहार में कभी बातिल के आज़ार का ख्याल न करना। हम अहले बैत के चाहने वाले। अच्छा, अब ये इस्लाम क्या है, इसे भी पता चलना चाहिए। इस्लाम है क्या? इस्लाम कहते किसे हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। खुदा ने दुनिया में एक से एक हसीन चीज बनाई। खुदा ने चरिंद बनाए, खुदा ने परिंद बनाए, खुदा ने दरख्त बनाया, खुदा ने जमीन बनाई, खुदा ने आसमान बनाया, खुदा ने जन्नत बनाई, खुदा ने कौसर बनाया। खुदा ने एक से एक चीज बनाई, एक से एक हसीन चीज, एक से एक हसीन चेहरा। लेकिन किसी के लिए नहीं कहा मुझे ये पसंद, मुझे ये पसंद, मुझे ये पसंद, मुझे ये पसंद। किसी चीज के लिए खुदा वंदे आलम ने नहीं कहा कि मुझे चांद पसंद, मुझे सूरज पसंद, मुझे सितारे पसंद, मुझे आसमान पसंद, मुझे जमीन पसंद, मुझे चरिंद पसंद, मुझे परिंद पसंद, मुझे दरख्त पसंद। किसी के लिए भी नहीं मिलता कि खुदा ने कहा मुझे ये पसंद। अरे भाई, एक से एक हसीन चेहरे बना दिए, लेकिन किसी के लिए नहीं कहा कि मुझे ये पसंद, ये पसंद। कहा तो किसके लिए कहा मुझे इस्लाम पसंद, मुझे दीन पसंद। तो ये दीन है क्या जो जिसे खुदा इतना पसंद करते हैं? चलो उलमा से पूछते हैं दीन है क्या। बड़े बड़े उलमा से पूछते हैं। गया मैं उलमा के पास, हाथों को जोड़ के खड़ा हो गया और कहने लगा, उलमा साहब ये बताइए कि खुदा बंदे आलम कह रहा है कि मुझे दीन पसंद है, मुझे इस्लाम पसंद है, तो ये दीन है क्या, ये इस्लाम है क्या जिसे खुदा इतना पसंद कर रहा है? खुदा ने तो बहुत सी चीजें बनाई लेकिन किसी के लिए नहीं कहा मुझे ये पसंद, मुझे पसंद। तो दीन ऐसा है क्या, दीन में ऐसा है क्या जिसे खुदा इतना पसंद कर रहा है? तो उलमा साहब ने कहा कि अगर आपको पता करना है कि इस्लाम है क्या, दीन है क्या, तो इसका जवाब एक ही शख्सियत दे सकती है। मैंने उनसे पूछा वो कौन शख्सियत है, वो कौन है? तो उन्होंने कहा इसका जवाब आपको सिर्फ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे सकते हैं। अब मैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास गया और हाथों को जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा, ख्वाजा साहब, खुदा बंदे आलम साहब कह रहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मुझे दीन पसंद है, मुझे दीन पसंद। बस आप यहीं से मेरे साथ हो जाइए, मुझे दीन पसंद है, मुझे दीन पसंद है। खुदा साफ साफ कह रहा है मुझे दीन पसंद है, मुझे दीन पसंद है। तो ये दीन है क्या जिसे खुदा इतना पसंद कर रहा है? तो ख्वाजा साहब ने मुस्कुरा के रुबाई का एक मिसरा पढ़ा कि दीन अस्त हुसैन, दीन है हुसैन। अब लुगते ख्वाजा में अगर इस आयत का तर्जुमा किया जाए इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, तो इस आयत का तर्जुमा यही होगा कि खुदा कह रहा मुझे कोई पसंद है तो बस हुसैन। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा ये कह रहा है कि मुझे कोई अगर पसंद है तो बस हुसैन। तो
फिर आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं हुसैन कौन है, हुसैन किसे कहते हैं। अभी जिलहज का महीना गया है, 10 जिलहज, कुर्बानियों का दिन। ये कुर्बानी आप क्यों करते हैं? तो आप सब एक जबान होके कहेंगे ये जनाबे इब्राहिम का दिया हुआ तोहफा है। अच्छा, जनाबे इब्राहिम का दिया हुआ तोहफा याद रहा। और रसूल के मैदान में रसूल खुदा ने कहा था मन को तो मौला मौला ये मौला से भूल गए। ये याद रहा, ये भूल गए। ये भूल इसलिए गए कि इसमें हसब और नसब की शर्त नहीं है, और इसमें हसब और नसब की शर्त है। ये भूल इसीलिए गए। अजीजों, तो मैं अर्ज कर रहा था हुसैन है क्या, हुसैन कहते किसे हैं? तो 10 जिलहज कुर्बानियों का दिन है, हम लोग कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी क्यों करते हैं? जनाबे इब्राहिम का दिया हुआ तोहफा है। अब आगे बढ़ते हैं तो तफसील से मैं आपको ये बताता चलूं कि जनाबे हुसैन समझा रहा हूँ, हुसैन से हुसैन न उतरे, मैं हुसैन समझा रहा हूँ कि जनाबे इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। जनाबे इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। तो जनाबे इब्राहिम ने ख्वाब जनाबे इस्माइल यानी अपने बेटे को जाके बताया। तो जनाबे इस्माइल ने क्या कहा पता है? जनाबे इस्माइल ने कहा चलिए बाबा मुझे ज़िबा कर दीजिए। अगर मिसाल दो, अगर मैं ख्वाब देखूं तो मैं किसी को छत पे लेकर गया, छत से धक्का दे दिया, वो गिर गया, और मैं जाके उसको ख्वाब बताऊं तो वो क्या करेगा? वो दौड़ता हुआ घर जाएगा, अपना सदका निकालेगा, खैरात देगा। इसलिए सदका तुरद्दुल बला, सदका बलाओं को टालता है। लेकिन जनाबे इब्राहिम ने जनाबे इस्माइल से जब कहा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम क्या करते हो बेटा? तो जनाबे इस्माइल ने ये सब नहीं कहा कि बाबा सदका निकालो, बाबा खैरात निकालो, बल्कि जनाबे इस्माइल ने कहा बाबा चलिए फिर मैदान में मुझे ज़िबा कर दीजिए। अब जनाबे इब्राहिम ने झोले में छुरी रखी, अपने बेटे इस्माइल का हाथ पकड़ा और आए मैदाने मिना में। मैदाने मिना में आए। अच्छा, जब ये जनाबे इब्राहिम और जनाबे इस्माइल मैदाने मिना में जा रहे थे तो कहीं पीछे मुड़ के देखिए, कहीं किसी के पैर में लर्जिश तो नहीं है, किसी का पैर कांप तो नहीं रहा है, किसी की बदन में थरथराहट तो नहीं। तो आप कैसी अजीब बात करते हैं? जैसे जैसे ये मैदाने मिना के करीब होते चले जा रहे हैं, इनके कदम और ही तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। आए मैदाने मिना में जनाबे इब्राहिम और जनाबे इस्माइल। जनाबे इब्राहिम ने जनाबे इस्माइल को लिटाया, झोले से छुरी को निकाला, छुरी को हवा में बुलंद किया। यह है इस्माइल का गला, यह है इब्राहिम की छुरी। अब यह छुरी चली, ऐसे चली, यहां तक आई थी कि हाथ कांपा। छुरी रखी, रुमाल निकाला, आंखों पे बांधा। यही है ना क्या? आंखों पर बांधा। तबाह अबू लबा बिल इत्तेफाक ये लिखते हैं कि इब्राहिम नबियों में वो नबी है कि जो इम्तिहान से कभी घबराए नहीं, इम्तिहान से कभी डरे नहीं। एक इम्तिहान पार किया, दूसरे के लिए कहा माबूद एक इम्तिहान और, उसे पार किया माबूद एक इम्तिहान और, उसे पार किया माबूद एक इम्तिहान और। शायद यही वजह थी कि इब्राहिम मनसबे इमामत तक पहुंचे। याद रहे, बस याद रहे, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने कहा माबूद बस, माबूद बस, माबूद बस। आंखों में पट्टी बांधने थे, माबूद बस, माबूद बस, माबूद बस। लेकिन कायनात में अकेला है हुसैन जिससे खुदा कह रहा था हुसैन बस, हुसैन बस, हुसैन बस। सलवात पढ़े मोहम्मद
अकेला है कायनात में ज़हरा का लाल, जिससे मामूद कह रहा था हुसैन बस, हुसैन बस, हुसैन बस। हाँ अज़ीज़ान मुहतरम, हुसैन कल भी लोगों की मदद करते थे, आज भी लोगों की मदद करते हैं। इमाम हुसैन ने राहिब को 7 औलाद अता कर दी। इमाम हुसैन ने बिदरुस को बालो पर अता कर दिए। इमाम हुसैन ने बहुत ही करम किया, आज भी लोगों की मदद करते हैं हमारे मौला। एक सलवात पढ़े तो एक वाक़या आपको सुना दूं। शाह ईरान के यहाँ एक गुलाम था जिसकी नौकरी थी जल्लाद की। वो जल्लाद था और वो था सैयद। अच्छा, अपने यहाँ सैयद को सैयद बोला जाता है, पंजाब में चले जाइए सैयद को शाह बोला जाता है, और जगहों पे सैयद को मीर बोला जाता है। तो उसका नाम पड़ गया मीर कातिल, इसलिए कि सैयद था और जल्लाद था, इस वजह से इसका नाम पड़ गया मीर कातिल। अब क्या था, इसने 2 शादियां की हुई थी, एक गांव में और एक शहर में। एक दिन इसने अपने दोस्तों से कहा आज चलो शिकार पे चलते हैं। अब जब वो शिकार पे जाने लगा तो अपनी ज़ौजा के पास पैगाम भिजवाया कि देखो हम लोग जा रहे हैं शिकार पे, शिकार करके जब वापस पलटेंगे तो हम हैं और हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे कुछ अजीज हैं, हम आके घर पे खाना खाएंगे। ज़ौजा वैसे ही तपी हुई थी, कहा कि आ जाओ तो बताते हैं। अच्छा, शिकार कर लिया। शाम को ये जब घर पहुंचे हैं, घर में दाखिल हुए, दस्तरखान चुन लिया गया, दस्तरखान पे सब लोग बैठ गए खाना खाने के। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या दस्तरखान पे जल्दी नींद आ सकती है? हर जगह नींद आ सकती है, लेकिन दस्तरखान पे नींद नहीं आ सकती। लेकिन इनकी आंख एक लम्हे के लिए लग गई तो ख्वाब क्या देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कह रहे हैं ऐ मीर कातिल, ये खाना मत खाना, इसलिए कि तुम्हारी ज़ौजा ने इस खाने में जहर मिलाया हुआ है, ये खाना मत खाना। हाँ, अब तुम चाहो तो अपनी ज़ौजा को रखो या फिर तलाक दे दो, मैंने तुम्हें जो बताना था मैंने तुम्हें वो बता दिया। अब इतने में इनकी आंख खुल गई, ये हड़बड़ा गए, दाई जानिब देखते हैं, बाई जानिब देखते हैं, अब करे क्या? ये ख्वाब था, अब हकीकत में आ गया, पता कैसे चले खाने में जहर है कि नहीं? तब तक देखा एक बिल्ली चली आ रही है, पर जल्दी से मीर कातिल ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सालन में बोरा, सालन में बोर कर बिल्ली की तरफ फेंक दिया। अब बिल्ली ने जैसे ही वो टुकड़ा खाया, बिल्ली 2 मिनट के अंदर वहीं तड़प के मर गई। मीर कातिल ने कहा अरे आज तो बच गए, अभी अगर इमाम ना आए होते तो आज तो मेरा काम हो गया। अच्छा, अब यहाँ रुक के मुझे एक बात बता दीजिए, क्या इमाम हुसैन ऐसे ही सबकी मदद करने के लिए आ जाते हैं? क्या मौला ऐसे ही सबकी मदद के लिए आ जाते हैं? कहा नहीं, तो फिर मीर कातिल की मदद क्यों की? ये बात तो समझ में आनी चाहिए, मीर कातिल की मदद क्यों की? तो खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मीर कातिल तुझे पता है मैंने तेरी मदद क्यों की? तो एक मरतबा मीर कातिल कहता मौला क्यों मदद की, क्यों जान बचाई मेरी? तो इमाम हुसैन कहते मीर कातिल तो एक दिन रास्ते से जा रहा था, रास्ते में एक कुतिया थी जिसके यहाँ पैदाइश हुई थी, बच्चे भूखे थे, कुतिये को दूध नहीं था, वो भी भूखी थी, तुमको उसके ऊपर तरस आ गया, सामने रोटी की दुकान थी, तुम रोटी की दुकान में गए और रोटी वाले को 1 महीने का पैसा दे दिया और कहा इसको सुबह शाम रोटियां देते रहना। तुमको उस कुतिये के ऊपर तरस आ गया और मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ गया, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचा ली। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। छोटी चीज भी देखते हैं, बड़ी से बड़ी चीज भी देखते हैं।
जानकारी है। मौला सब जानते हैं, मौला सब देखते हैं। अब आप पर ज्यादा प्यार है, मौला सब देख रहे हैं कौन आया कौन नहीं आया, मौला सब कुछ जानते। ये इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला, ये इस्लाम बड़े ही ये इस्लाम बड़ी मेहनतों से फैला है। ये इस्लाम डंडे की जोर पे नहीं फैला है, ये इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला है, ये इस्लाम लाठी की जोर पे नहीं फैला है, ये इस्लाम तबलीग से फैला है, ये इस्लाम किरदार से फैला है, ये इस्लाम इतनी आसानी से नहीं फैला है। एक वाक़या और आपको सुना दो कि एक मौलाना थे, एक ऐसा गांव था जिसमें इस्लाम नाम का नामो निशान नहीं था। इस्लाम जानते ही नहीं थे इस्लाम कहते किसे, ऐसा गांव था। बहुत से ऐसे गांव पहले इस्लाम जानते नहीं थे इस्लाम कहते किसे है, इस्लाम होता था। मेरे पास हदीस मौजूद है, इस्लाम कहते किसे है, इस्लाम होता क्या है। तो मौलाना थे सैयद जवाद नाम था उनका। तो वो सैयद जवाद जो मौलाना थे वो उस गांव में गए रमजान की नमाज पढ़ाने के लिए। तो जब वो गांव में पहुंचे तो देखा एक खेत में एक बुजुर्ग काम कर रहे हैं। तो वो उनके पास ठहर गए, उनके पास रुक के कहने लगे, मतलब बातचीत की आपस में। फिर कहने लगे अच्छा ये बताइए कि आपके मजहब के शेख कौन है। मजहब के शेख का मतलब है रहबर कौन है। आपके शेख वो लगा लंबी फेंकने, मेरे मजहब के शेख तो ऐसे हैं, मेरे मजहब के शेख तो वैसे हैं, मेरे मजहब के शेख तो ऐसे। मगरिब से लेके मशरिक तक दस्तरखान लगा रहता है, जो भी आए खाए, जो भी आए खाए, फिर चला जाए, चाहे जब आए खाए पिए, ऐसे है वैसे है, फेंकता रहा। अच्छा इन्होंने इसीलिए पूछा था कि जनाब पलट कर हमसे पूछे कि हम भी बताएं तो, और वही हुआ, इन्होंने छींटा डाल दिया था। अब वही हुआ, इन्होंने पूछ लिया पलट कर कि ये बताइए आपके मजहब के शेख क्या कैसे हैं, आपके मजहब के शेख कैसे हैं, आपके मजहब के रहबर कैसे हैं। तो उन्होंने कहा अरे क्या पूछते हैं, हमारे मजहब के शेख तो ऐसे हैं कि अगर हम मगरिब में रहे और वो मशरिक में रहे, और वो मशरिक के एकदम आखिरी कोने पे रहे और मगरिब के एकदम आखिरी कोने पे रहे, और हम किसी मुसीबत में फंस जाए और अगर हम दिल से तड़प कर उनको बुलाएं तो वो हमारी मदद को पहुंच जाते हैं, वो हमारी मदद के लिए आ जाते। कहने लगा हाँ ऐसा हो, ऐसे में आपके मजहब के शेख। मैंने कहा हाँ, उन्होंने कहा हाँ ऐसे हमारे मजहब के शेख। अच्छा उस बुजुर्ग के पास ज्यादा मजहब के बारे में जानकारी नहीं थी, इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा अब इससे ज्यादा बात को छेड़ना इनके लिए अच्छी बात नहीं है, अब इसी पे रुक जाओ और यहाँ से हट जाओ, अब इसे सोचने दो, इसे उलझे रहे। और ये कह के वहां से हट गए। रमजान का महीना खत्म हुआ, फिर अगले साल रमजान का महीना आया। अब सुन रहे रमजान का महीना जब दोबारा आया, दूसरे साल आया जब रमजान का महीना, तो वो मौलाना फिर आए सैयद जवाद। तो पूछने लगे कि पिछले साल हम आए थे तो एक दोस्त हमारे यहाँ बन गए थे, एक बुजुर्ग थे, वो कहाँ है, उनका नाम फलाजो भी नाम रहा, वो कहाँ है, वो नहीं मिल रहे हैं। कहा ऐसा है कि वो पिछले साल ही उनका इंतकाल हो गया, वो मर गए। सैयद जवाद ने कहा अच्छा उनका घर ही हमें बता दीजिए, जाए उनके बेटे से मिलने। तो लोगों ने उनका घर बताया, तो वो गए उनके बेटों के पास और कहा मुझे सुन के बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही सदमा पहुंचा। और उनके बेटों से कहा अच्छा ऐसा करो मुझे अपने बाबा की कब्र बता दो, जाके सूरे फातिहा कर दो। अब वो उनकी कब्र पर आए सैयद जवाद, कब्र पे हाथ रखा, सूरे फातिहा पढ़ा, फिर खुदा से एक शिकायत, ऐ खुदा मैं तेरे दीन का खादिम हूँ, मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा था, इसे दीन नहीं पता था, इसे इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मैं इसे बता रहा था, इसे समझा रहा था कि दीन है क्या, दीन इस्लाम है क्या, मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। तूने इसे अपने पास बुला लिया, बोला 1 साल का और वक्त
वक्त दे दिया होता तो मैं इसे बता तो देता इस्लाम कहते किसे हैं, इस दीन कहते किसे हैं, 1 साल का वक्त दे देता। अच्छा ये शिकायत करके वापस पलटा तो लड़कों ने कहा ऐसा कि रात हो गई है तो आप कहाँ जाएंगे, ऐसा करिए आज आप मेरे घर मेहमान बन जाइए, आप मेरे घर सो जाइए। कहा ठीक है चलो आज तुम्हारे घर हम सो जाते हैं। अब वो उनके घर जब सोए नींद के हालत में तो वो ख्वाब क्या देखते हैं, वही बुजुर्ग ख्वाब में आए। एक बाग है, उस बाग के दर पे वो बुजुर्ग खड़े हुए, सुनना ना जवान, वो बाग के दहलीज पे वो बुजुर्ग खड़े हुए। अब जैसे ही सैयद जवाद को देखा दौड़कर गले से लगा, लिखा सैयद जवाद साहब अगर आप न होते तो मेरी लुटिया डूब जाती, मैं तो खत्म हो जाता, मेरा कोई नाम निशान न होता। आज आपने तो मुझे बचा लिया जहन्नम किया। कहा क्या हुआ, कहा हुआ ऐसा कि जब गुस्ल सब हमें दे चुके, कफन दे चुके, दम कर चुके और सब जैसे ही वापस पलटे तब तक 2 फरिश्ते कब्र में आ गए और गुर्ज लेकर खड़े हो गए। बता तेरा इमाम कौन, बता तेरा अल्लाह कौन, बता तेरा दीन कौन, बता तेरी किताबें कौन, बता तेरा इस्लाम कौन। अब जबान पे है, निकल ही नहीं रहा है कुछ। अब मैं घबरा गया, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। करीब था कि गुर्ज से वो मेरे ऊपर वार कर दे कि इतने में मुझे तुम्हारी वो वाली बात याद आ गई कि तुमने कहा था मेरे मज़ार के शेर ऐसे हैं कि जो अगर हम मगरिब में रहें, वो मशरिक में रहें, दिल से तड़प से पुकारे तो वो मदद के लिए आ जाते हैं। तो मैंने तड़प के कहा है सैयद जवाद के शेर जल्दी से मेरी मदद को आ। अब इतना सुनना था कि कब्र में एक नूरानी शख्सियत आ गई, साथ में 2 फरिश्ते आ गए। अब जो फरिश्ते पहले आए हुए थे हाथों में गुर्ज लेकर, उस शख्सियत ने कहा ऐसा है कि तुम दोनों लोग चले जाओ, और इन दोनों जो बाद में फरिश्ते आए थे इन दोनों से कहा तुम इसे दीन की तालीम दो, तुम इसे बताओ इस्लाम कहते किसे हैं, तुम इसे इस्लाम की तालीम दो, फिर इसका इम्तिहान लो, अगर पास होता है तो बाग इसके हवाले कर दो। इस वजह से मैं तो बच गया, इम्तिहान में पास हो गया और मुझे ये बाग मिल गई, लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है। कहा कौन सी शिकायत है? कहा तुमने ये नहीं बताया तुम्हारे मज़ाब के शेर से तुम्हारी मुराद मौला अली थे। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम कहते किसे हैं, इस्लाम चाहता क्या है हमसे, इस्लाम हमें सिखाता क्या है। इस्लाम चाहता है बुजुर्गों की इज्जत करे, बच्चों से प्यार करे, तहजीब से रहे, कोई ऐसी बात न बोले किसी को नागवार गुजर जाए। इस्लाम हमें अच्छी बातें सिखाता है। इस्लाम अगर हम और आप हमें कोई कुछ बोल दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारे मुंह से भी 2-4 लफ्ज निकल जाते हैं, हम भी उल्टा सीधा बोल ही देते हैं, लड़ाई के ऊपर आमादा हो जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, हम में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रहती और हम अपने आप को आज़ादार कहते हैं। वाह, रसूल अल्लाह जो थे वो एक रास्ते से जा रहे थे। रसूल अल्लाह ने देखिए कितना अच्छा पैगाम दिया है दुनिया को कि रसूल अल्लाह एक रास्ते से जा रहे थे तो एक शख्स था जो इतना बड़ा दुश्मन था रसूल अल्लाह का कि वो जब रसूल अल्लाह चाहते रास्ते में कांटा बिछा देता था और कुछ ओझड़ियां लिए हुए था, कुछ गंदगी जो बुलंदी में जाता और रसूल अल्लाह के ऊपर फेंक देता था, लेकिन रसूल अल्लाह कुछ न करते, चुप से मस्जिद चले जाते। रोज का रोज इसका यही काम हो गया, लेकिन रसूल अल्लाह ने एक बार उस शख्स को कुछ न बोला। लेकिन अगर आप हमारे और आपके ऊपर कोई कुछ फेंक दे, कोई कुछ बोल दे तो आपसे बर्दाश्त होगा, कतई बर्दाश्त न होगा, मार पीट पे उतारू हो जाएंगे, हम लड़ाई पे उतारू हो जाएंगे और हम आज़ादार हैं।
رسول اللہ کے اوپر بہت پھینکتا تھا. ایک دن رسول اللہ اس راستے سے جا رہے تھے تو رسول اللہ نے دیکھا نہ آج کانٹا ہے نہ آج گندگی سر پہ آئی، کیا بات ہے. رسول اللہ مسجد میں گئے، صحابیوں سے کہا اچھا یہ بتاؤ جو میرے اوپر گندگی پھینکتا تھا، جو میرے راستے میں کانٹا بچھاتا تھا، وہ کہاں ہے؟ آج نہ گندگی پھینکی ہے نہ میرے راستے میں کانٹا بچھایا ہے، کیا بات ہے، آج وہ دکھ نہیں رہا ہے. تو ایک مرتبہ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے. تو رسول اللہ نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ بیمار ہے، وہ اس حالت میں ہے، چلو اس کی عیادت کو چلتے ہیں، چلو اس کی حال چال دریافت کرنے کو چلتے ہیں، پتہ تو کرتے ہیں کیا ہوا اس کو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر وہ گندگی پھینکتا تھا، آپ کے اوپر وہ گندگی پھینکتا تھا، آپ کے راستے میں کانٹا بچھاتا تھا اور آپ اس کے لیے جا رہے ہیں، اس کی عیادت کو جا رہے ہیں. کہا ہاں میں جاؤں گا اور تمہیں بھی ساتھ میں چلنا ہوگا. اب رسول اللہ صحابیوں کے ساتھ چلے، ان کے در پہ آ کے کھڑے ہوئے، دق الباب کیا، وہ تو بیمار تھا. زوجہ باہر نکلی، کہا کون؟ کہا میں محمد ہوں، میں رسول خدا ہوں. اب یہ تو گھبرا گئی، اب کیا ہو، رسول خدا آ گئے. اب یہ دوڑ کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی سنتے ہو جس کے اوپر آپ گندگی پھینکتے تھے، جس کے راستے میں آپ کانٹا بچھاتے تھے، وہ تمہاری عیادت کے لیے آیا ہے، تمہاری حال چال دریافت کرنے کے لیے آیا. کیا کہتے ہو، اندر بلا لے یا باہر سے واپس بھیج دے؟ اب وہ شرمندہ ہو گیا اور دیکھنے لگا یہ کیا ہو گیا. اچھا عرب کا ایک دستور ہے کہ دروازے پہ آئے ہوئے مہمان کو کبھی واپس نہیں پڑھایا جاتا. اب وہ کچھ دیر سوچنے لگا، ادھر کروٹ لے ادھر کروٹ لے، سوچنے کے بعد کہنے لگا ایسا ہے جب آ ہی گئے ہیں تو اندر بھی بلا لو، لیکن پہلے ایک کام کرو. کام میری اتنی ہمت نہیں ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ رسول خدا کا سامنا کریں، کیونکہ میں نے رسول خدا کو بہت بتایا ہے. ایسا کرو میرے چہرے کے اوپر رومال ڈالو. زوجہ نے چہرے کے اوپر رومال ڈال دیا. اب رسول خدا اندر تشریف لائے، کیا حال ہے، سنا تمہاری طبیعت خراب ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے اتنی دیر میں اطلاع ملی، مجھے معاف کرو، میں معذرت چاہتا ہوں اتنی دیر میں جو مجھے اطلاع ملی، مجھے آنے میں دیر ہو گئی. تو ایک مرتبہ وہ جو شخص بیمار تھا اس نے کچھ نہ بولا، وہ چپ رہا. رسول خدا بولتے رہے، وہ کچھ نہ بولا. تو ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا کیا ہوا، بولتا کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ اس شخص نے اندر سے بولا یا رسول اللہ تب تک نہیں بولوں گا جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھا دیتے. یہ ہے ایسے دین پھیلا ہے، ایسے اسلام پھیلا ہے، ایسے نہیں پھیلا کہ لاٹھی لے کر پہنچ گئے، ڈنڈا لے کر پہنچ گئے. بڑی ہی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو اسلام آج تک ہم تک پہنچ پایا ہے، بہت ہی قربانیوں کا نتیجہ ہے. امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے اپنا بھرا گھر لٹا دیا کہ دین بچ جائے، اسلام بچ جائے. بھرا کا بھرا گھر لٹا دیا. ہاں دیدار محترم، بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا. عزیزو، حسین 28 رجب سن 60 ہجری گھر سے نکل چکے. 2 محرم 61 ہجری کربلا پہنچے. 2 محرم کو خیمے لگائے گئے. حسین آج کربلا پہنچ چکے ہیں. ہزاروں خیمے لگا دیے گئے.
4 मुहर्रम को खैमे हटा दिए गए फरात के किनारे से। 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, दादा हुसैन पर पानी बंद हो गया। 10वीं को कुर्बानियों का दिन आया। हाँ दादारो, कयामत आ गई जब सब सहाबा अंसार शहीद हो गए तो एक मर्तबा बनी हाशिम की बारी आई। कभी कासिम मैदान में जाते हैं, कभी और मोहम्मद मैदान में जाते हैं। हाँ दादारो, जब सब सहाबा अंसार शहीद हो गए तो एक मर्तबा अली अकबर मौला हुसैन के पास आए और आके कहते हैं, ए बाबा, अपना कोई नहीं रहा बाबा, अब मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दीजिए बाबा। एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे लाल, मैं तुझे कैसे इजाजत दूं? अरे तुम्हें तो तुम्हारी फूफी अम्मा ज़ैनब ने पाला है, जाओ अपनी फूफी अम्मा से इजाजत ले लो। अगर वो इजाजत देती है तो जाओ, खुदा हाफिज़ बेटा, फिर मैं नहीं रोकूंगा। दादारो, अली अकबर फूफी अम्मा के पास आए और कहा, फूफी अम्मा, वक्त आ गया, अरे अब अपना कोई नहीं रहा फूफी अम्मा, अब मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। हाँ दादारो, कयामत आ गए। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, ए बेटा अली अकबर, मैं तुझे किस दिल से जाने की इजाजत दे दूं? बेटा, जब तू 1 बरस का होता मैं तेरा 1 बरस का कुर्ता रख लेती, 2 बरस का होता 2 बरस का कपड़ा रख लेती, 60 बरस का हुआ 60 बरस का कपड़ा रख लिया, 18 बरस तक के कपड़े रखे। बेटा, मैं तुझे कैसे मैदान में जाने की इजाजत दूं? ए बेटा, तेरी शादी रचाने का अरमान। दादारो, जब इजाजत न मिली तो मर्तबा अली अकबर कहते, अच्छा फूफी अम्मा इजाजत नहीं देती तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए। का कैसा सवाल है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? एक मर्तबा अली अकबर तड़प के कहते, फूफी अम्मा, मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपकी नजर में मेरी माँ लैला ज्यादा अफजल है या बाबा हुसैन की माँ फातिमा? ज़ैनब तड़प गई, बेटा कैसा सवाल कर दिया? अरे वो फातिमा तो ज़हरा है, वो ज्यादा अफजल है। तो एक मर्तबा अली अकबर तड़प के कहते, ए फूफी अम्मा, अरे लैला का लाल देखता रहे, लैला का लाल देखता रहे, फातिमा के लाल के गले पर कुंद खंजर चल जाए। अजरकुमिल्लाह, अजरकुमिल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम हुसैन के। हाँ दादारो, मैंने अकबर की शहादत शुरू कर दी। दादारो, इजाजत मिली, अम्मा के पास आए, अम्मा इजाजत दीजिए, अब देर हो रही है, मैदान में जाने दीजिए। लैला ने अपने जिगर के टुकड़े को कलेजे से लगा लिया, कहा जाओ बेटा, इजाजत दी। फिर बाबा के पास आए, कहा ए बाबा, तुम्हें अम्मा ने भी इजाजत दे दी, अम्मा ने भी इजाजत दे दी, अब आप भी इजाजत दे दीजिए। हाँ दादारो, हुसैन कहते, जब तुम्हारी फूफी अम्मा ने इजाजत दे दी, जाओ बेटा, खुदा हाफिज। हाँ दादारो, इधर अली अकबर मैदान में आए, अरे उधर हुसैन, उधर माँ लैला खैमे के दर पे आई। जवान बेटा है, कुछ हो गया तो बाप के चेहरे का रंग बदलेगा। अचानक शब्बीर के चेहरे पे जल्दी छाई। लैला ने पूछा, मौला मेरा बच्चा खैरियत से तो है? कहा लैला, खैमे में जाओ, मेरे अकबर के लिए दुआ करो, मेरे बच्चे के सामने बहुत बड़ा नामी पहलवान आ गया है, मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा है और वो सैरो सैराब है, मेरे बच्चे के लिए दुआ करो। अरे लैला खैमे में आए, फातिमा की बहू ने सर से चादर उतारी, कुरान खोल के सर पे रखा, ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मुझसे मेरा अकबर मिला दे। हाँ दादारो, इधर दुआ खत्मी ना होने पाई थी, उधर खैमे के दर पे अली अकबर आ गए। हुसैन ने अपने कड़ियल जवान को सीने से लगा लिया, कहा बेटा तुमने
نے کیا خوب جنگ کی، ماشاءاللہ بیٹا تم نے تو بابا علی کی یاد دلا دی، کیا خوب لڑ رہے تھے، کیا خوب بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ علی اکبر تڑپ کے کہتے بابا یہ تو کچھ نہیں ہے، اگر کہیں سے 2 گھونٹ پانی کا قطرہ مل جاتا تو میں ان لعینوں کو بتا دیتا کہ میں بنی ہاشم کا شیر علی کا پوتا اور آپ کا بیٹا ہوں۔ آزادار حسین کہتے بیٹا پانی تو نہیں ہے لیکن لو میری زبان اپنی زبان میں رکھ لو۔ آزادار حسین نے اپنی زبان علی اکبر کی زبان میں رکھ دی۔ اب کیا تھا، علی اکبر نے فوراً اپنی زبان ہٹا لی اور کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ آزادار حسین نے کہا بیٹا اب دیر ہو رہی، میدان میں جاؤ، بس 2 جملے علی اکبر کے شہادت کے مصائب تمام۔ آزادار میدان میں جاؤ، علی اکبر پلٹ کر میدان میں آئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے نے ایسی جنگ کی کہ ادھر کی فوج ادھر کی فوج ادھر ہو گئی۔ آزاداروں لیکن آپ انصاف سے بتائیے 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اکبر کب تک لڑتا؟ چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا اکبر کو۔ ارے اب کوئی تیر مارتا، کوئی تلوار مارتا، ارے سنان ابن انس آگے بڑھا، علی اکبر کے سینے میں ایسا نیزہ مارا، علی اکبر زمین میں سنبھل نہ سکے، زمین میں تشریف لا، بابا کو آواز اے بابا میرا آخری سلام قبول کرو۔ ارے روایت لکھتی ہے کہ اب حسین اکبر کی جانب دوڑے، اور 57 سال کا ضعیف 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین اکبر کے پاس جاتے وقت کئی مرتبہ گرے، کئی مرتبہ اٹھے۔ آزادار قیامت کا جملہ اب جب حسین سے چلا نہ گیا تو حسین زانو بدانو گھٹنیوں کے بعد علی اکبر کے پاس پہنچے، سر کو گود میں اٹھا کے رکھا۔ آزادار علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ تھا، کہا بیٹا تیرا ہاتھ سینے پہ کیوں؟ کہا بابا نیزہ لگا ہے، بابا بچی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے۔ آزادار نے مظلوم کربلا قیامت آ گئے۔ حسین نے کہا بیٹا بیٹا تیرا ظالم تیرا قاتل بڑا ظالم تھا، اس نے نیزہ نکالا نہیں بلکہ نیزہ توڑ گیا۔ اکبر کہتے ہاں بابا کہتا گیا ہے، سنتا ہوں حسین بڑا صابر ہے۔ کہا اچھا بیٹا وہ میرے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کہا ہاں بابا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے بابا نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہوں، جس طریقے سے دل کرے برچی کے پھل کو کھینچے۔ کربلا کی زمین میں بوڑھے باپ نے گھٹنوں کو ٹیکا، برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، کہا بیٹا گھبرانا نہیں، بیٹا مجھے چھوڑ کے نہ جانا، بیٹا مجھے چھوڑ کے نہ جانا، بیٹا میری آنکھوں کا نور چلا جائے گا، بیٹا پریشان نہ ہو، بیٹا پریشان نہ ہو، مجھے چھوڑنا نہیں بیٹا۔ یہ کہہ کے برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، اور برچی کے پھل کو کھینچنا ہی چاہتے تھے کہ کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا۔ آزاداروں اب کیا میں عرض کروں، حسین کو لگا میرا اکبر ہل رہا ہے، میرا لال ہل رہا ہے۔ آزاداروں حسین نے برچی کے پھل سے ہاتھ ہٹا لیا، بس آخری جملہ برچی کے پھل سے ہاتھ ہٹا لیا۔ دوبارہ حسین نے برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، پھر کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، حسین نے برچی کے پھل سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اب تیسری مرتبہ حسین نے برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، برچی کا پھل کھینچنا ہی چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا۔ آزاداروں حسین ہاتھ ہٹانے والے تھے، ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنا فون سے بڑا ہاتھ اٹھایا اور حسین کے سر پہ رکھ کے کہتے بابا تیرے سر کی قسم میں نہیں ہلا، بابا کربلا کی زمین ہل رہی، بابا تو برچی کا پھل کھینچ۔ آزاداروں غریب باپ نے اپنے کڑیل جوان کے سینے میں
بلچی کے پھل کو کھینچا، ارے بلچی کا پھل خالی نہ آیا بلکہ ساتھ میں الجھ کر علی اکبر کا کلیجہ باہر نکل آیا۔ آئے صحیح باپ کے سامنے کڑی الجوان کا کلیجہ